Hello everyone, welcome to the channel. So this is going to be our second video in the series of Back to Basics series in which we are completing the complete NCRTs. Now, already in the first chapter, we have already done the basics of economy as well as we have practiced the MCQs. In today's lecture, we are going to start with the chapter National Income Definition and a Overview. And after that, we are going to solve some of the most important MCQs question which is based on this chapter. So if you want the complete PDF, you can see the pinned comment section. वहां से आपको लिंक डाउनलोड करने का मिल जाएगा. टोटल 165 पेजेस हैं इस पीडीएफ में. And also the sample PDF is uploaded on the Telegram channel, so you can watch that and then decide whether you need this PDF or not. But let me tell you, this PDF is completely based on the NCRTs. Okay, so NCRTs के बाहर इसमें कुछ नहीं है and बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से हमने क्वेश्चन भी डील किया है and we have also already made the content from the NCRTs. Now let us start with our national income chapter. Now सबसे पहले तो let us see what is national income. Now the national income is the total value of all final goods and services produced within a country during a financial year, reflecting the sum of economic activities in monetary terms. So इस national income को समझने के लिए we are going to break this definition and we are going to understand it part wise. Now, it is the total value of all final goods and services. So, what is a final good? A final good is a good जिसमें कोई और एडिशन करके नया प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता है. Final good is a good in which no addition can be made. It is a good in which no addition can be made to make a new product. ठीक है, ये फाइनल गुड जो होता है वो कंजम्पशन के लिए होता है. डायरेक्टली प्रोडक्शन के बाद इस गुड्स का कंजम्पशन किया जाता है बाय द कंज्यूमर्स इन द इकोनॉमी. ठीक है, सो इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री. विद इन द कंट्री मतलब कि विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री. टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, ठीक है, उस कंट्री की खुद के बॉर्डर्स के अंदर जो भी सामान जो भी गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है दैट इज विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर विच वी नो मार्च 31st टू अप्रैल 1st इज द फाइनेंशियल ईयर. नाउ ये सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, दिस reflect the sum of all economic activities in monetary terms and this is known as the national income. आगे हम ये भी देखेंगे देयर आर मेनी डिफरेंट वेज टू फाइंड दिस नेशनल इनकम, वो सारा कुछ हम देखते हैं. बट नेशनल इनकम हमें समझ में आ गया. नाउ लेट अस सी सम ऑफ द हिस्टोरिकल टाइमलाइन एंड सम ऑफ द हिस्टोरिकल नेशनल इनकम एस्टिमेशन कैसे हुई थी ऑफ द नेशनल इनकम इन द पास्ट. ठीक है, हिस्ट्री में कैसे हमने इवेल्युएट किया था एंड यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है एंड आई विल टेल यू कौन सा क्वेश्चन. नाउ फर्स्ट वन 1868 में what happened is the first attempt to determine the national income was made by Dadabhai Naoroji. Now Dadabhai Naoroji, he estimated the per capita income at rupees 20 in his book Poverty and Un-British Rule in India. So this is the most important question. क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेंगे वो कि फर्स्ट टाइम द नेशनल इनकम द पर कैपिटा इनकम वाज determined or was estimated by, so we will answer it was estimated by Dadabhai Naoroji and he has also written the book Poverty and the Un-British Rule जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है. इन एडिशन टू दैट अगर मैं बात करूं तो पोवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल बुक के अंदर ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में भी बताया गया है. ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जिसमें हाउ दिस वेल्थ was drained from the Indian economy, it उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दिया गया था. इन एडिशन टू दैट कैसे ड्रेन हुई थी वेल्थ इसको बताया गया था ऑन अकाउंट ऑफ होम चार्जेस. Now this is completely a topic which is of the modern history का part, so this in detail we are going to cover in the
बैक टू बेसिक सीरीज जिसमें हम कंप्लीट हिस्ट्री को कवर करेंगे, ठीक है। बिकॉज ये इकोनॉमी का सेक्शन है एंड मैंने आपको इस चीज से आई वांटेड यू कि आपको ये चीज पता हो, दैट इज व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन अ बिट डिटेल। नेक्स्ट इज आफ्टर 1868 के बाद द नेक्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड इन द ईयर 1925 टू 1929। नाउ प्रोफेसर VKRV Rao, he used the scientific method to estimate per capita income at 76. So we have seen 1868 में per capita income which was determined by Dadabhai Naroji, ये थी 20 rupees and 76 rupees तक ये rise कर गई थी in the year 1925 to 29 which was estimated by Professor VKRV Rao. Next is 1949 में another attempt was made in which the government appointed the National Income Committee. The government appointed the National Income Committee under the PC Mahalanobis. Now this is important. ठीक है? Why this is important? Because independent India after the India attained independence, this was the first attempt that was made to determine the national income of the country, and it was done in the year 1949 under PC Mahalanobis. Next is 1951 में what happened was the first official report estimated the national income at 8,650 crore and per capita income at 246.50 crore. अब इतना डिफरेंस क्यों है? बिकॉज हमने क्या देखा था नेशनल इनकम की डेफिनेशन में कि इट इज द फाइनल वैल्यू of all the goods and services that are produced within the territorial boundary of a country. ठीक है, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है वो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी एंड दैट इज व्हाई 1951 में दिस नेशनल इनकम वाज 8,650 करोड़। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं बात करूं पर कैपिटा इनकम क्या होती है, when the national income is divided by the population of the country, then it shows the per capita income. जब हम national income को national income को when we divide it by population of the country, then we get the per capita income. And this shows per मतलब single, कैपिटा मतलब सिंगल इंसान कितना पैसा कमा रहा है, पर इंसान कितना पैसा कमा रहा है. दिस इज नोन एज द पर कैपिटा इनकम एंड इट इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेजर्स. इट इज known as it is known as one of the most accurate measures to ascertain the development of a country. तो 1951 में ये estimate किया गया था इसको 246.50 रुपीज थी पर कैपिटा इनकम. ठीक है, अब हमने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी देख लिया. नाउ लेट अस सी बिफोर सीइंग द फॉर्मूलाज एंड ऑल, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है एट टाइम्स. नाउ पहले नेक्स्ट तो फॉर्मूला ही हमने करना है, बट उसके पहले लेट अस सी सम ऑफ द बेसिक टर्म्स. अगर हमें बेसिक टर्म्स समझ में आ जाएंगे सो इट वुड बी इजियर फॉर अस टू गेस दिस. नाउ व्हाट इज अ फाइनल गुड? फाइनल गुड इज अ गुड दैट इज मेंट फॉर फाइनल यूज, नॉट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और सेल. मतलब कि वैसा गुड जिसमें कि कोई एडिशन करके वी कैन नॉट मेक अ न्यू गुड. अ न्यू गुड कैन नॉट बी मेड, दैट इज अ फाइनल गुड. एंड दिस इज ऑलरेडी फॉर द यूज ऑफ कंजम्पशन एंड दैट इज वाई, क्योंकि उसमें कोई और एडिशन नहीं हो सकता है, दैट इज वाई जो हमारी नेशनल इनकम में कैलकुलेशन होती है वो फाइनल गुड्स की होती है. ठीक है. नाउ intermediate good. What is an intermediate good? Now the good that is used as input in production of other goods such as raw material. जैसे कोई भी raw material है, let us suppose paper है. Now the paper is used further to make copies. ठीक है, तो copies is used for writing. Writing के लिए copies use होती हैं, तो copies are the final goods, whereas paper is an intermediate good. पेपर इज एन इंटरमीडिएट गुड. वाई इट इज एन इंटरमीडिएट गुड? क्योंकि पेपर में फर्दर प्रोसेसिंग करके हम कॉपीज बनाते हैं, दैट इज वाई. ओके, पेपर इज यूज्ड एज एन इनपुट टू प्रोड्यूस अदर गुड. दिस इज नोन एज द इंटरमीडिएट गुड. ठीक है. नाउ प्राइमरी गुड्स भी होते हैं. प्राइमरी गुड्स भी होते हैं, ये बिल्कुल बेसिक लेवल ऑफ गुड्स होते हैं. प्राइमरी लेवल से द गुड्स आते हैं जो वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, एंड फाइनल जो कंजम्पशन के लिए होते हैं वो फाइनल गुड्स होते हैं. ठीक है.
Next is what is meant by depreciation then? Now depreciation is the annual allowance for the wear and tear of the capital good. अब इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ. Let us suppose you have a car. आपके पास कार है जो आपने 2021 में लिया. आज की डेट में द ईयर इज गोइंग ऑन 2025. अब इन 4 years में नेचुरली कार की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हुई होगी. तो कार की वैल्यू डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि एज द कार मूव्स ऑन द रोड, इंजन इसका पुराना होता है, टायर्स पुराने होते हैं, ठीक है, द कंडीशन ऑफ द कार गेट्स डिटोरिएटेड. इसके अलावा कार अब कभी एक्सीडेंट से मीट करती है तो द बॉडीली कंडीशन ऑफ द कार, द चेसिस ऑफ द कार गेट्स डैमेज. सो जैसे जैसे किसी कैपिटल गुड की लाइफ ज़्यादा होती जाती है तो वो गुड डेप्रिशिएट करता है. एंड डेप्रिसिएशन का मतलब ही होता है द एनुअल वियर एंड टीयर ऑफ द कैपिटल गुड्स, जिससे उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है. दिस इज नोन एज द डेप्रिसिएशन. एंड वेयर इज दिस डेप्रिसिएशन यूज? तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा. जब भी हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं इन द फॉर्मूलाज, वी कम टू नेट. ठीक है, नेट जैसे जीडीपी है हमारा, दैट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो जब जीडीपी से हम डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करते हैं, दैट इज द एनुअल वियर एंड टीयर ऑफ द कैपिटल गुड, देन वी कम टू द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, सो यही यहाँ पे यूज होने वाला है आने वाले टाइम में ऑफ दिस डेप्रिसिएशन का. ठीक है, नेक्स्ट इज मार्केट प्राइस. व्हाट इज द मार्केट प्राइस? द प्राइस दैट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड द सब्सिडीज. सारे फैक्टर्स को जब इंक्लूड करके, सारे प्राइसेस को इंक्लूड करके जो प्राइस आता है हमारा, दैट इज नोन एज द मार्केट प्राइस. अब इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? जीएसटी. जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. जीएसटी को इंक्लूड किया. उसके बाद सब्सिडीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, जो डायरेक्ट अकाउंट में फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी आती है एंड ऑल, दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन दिस मार्केट प्राइस. ठीक है, अब व्हाट इज द फैक्टर कॉस्ट देन? अब मार्केट प्राइस क्या है जिसमें कि इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज को हमने इंक्लूड किया है. फैक्टर कॉस्ट इज अ थिंग जिसमें कि ऑल दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है, बट यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी को जो है वो एक्सक्लूड किया जाता है. अब अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो बेसिकली यहाँ पे 4 फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के. दैट इज लैंड, लेबर, रेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप. These are the 4 factors of the production जिसके बाद एक गुड जो है वो प्रोड्यूस होता है. ठीक है, सो फैक्टर कॉस्ट में all the factors of production are included such as land, labor, rent, entrepreneurship. ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं, बट हम एक्सक्लूड कर देते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज कस्टम्स हो गया, सॉरी नॉट कस्टम्स, जीएसटी हो गया, वैट हो गया, एंड सब्सिडीज को, इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, सब्सिडीज एंड ग्रांट्स को हम इंक्लूड कर देते हैं. ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ द फैक्टर कॉस्ट. लेट्स नाउ सी सम ऑफ द अदर टर्म्स. This is the purchasing power parity. What actually is the purchasing power parity? Now, this is a metric that compares economic productivity and living standard across our countries. Purchasing power parity में what happens is a set basket of goods is taken. मतलब similar basket of goods is taken and their prices and all of the other things is compared with a common metric within various countries. तो जब सेट बास्केट ऑफ गुड्स से किसी चीज का कंपैरिजन होता है तो इट इज एबल टू कैलकुलेट वेरी इफेक्टिवली द लिविंग स्टैंडर्ड अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज. एंड अगर मैं बात करूं पीपीपी के हिसाब से, तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री, या इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट है इकोनॉमी एज पर द पीपीपी, दैट इज द परचेजिंग पावर पैरिटी. ठीक है, नाउ
नेक्स्ट थिंग, अभी जब जैसे हम इकोनॉमी के सारे लेक्चर्स को कवर करेंगे, वी विल सी, आप बहुत ज़्यादा इस टर्म को देखोगे, दैट इज़ द बेस ईयर. सो व्हाट एक्चुअली इज़ द बेस ईयर, यू विल हैव टू नो. अब जैसे कि मैंने बताया कि जो सीरीज़ है इसका मतलब ही है कि हम बेसिक से सारा कुछ कवर करने वाले हैं, सो ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए. नाउ व्हाट इज़ अ बेस ईयर? नाउ दिस इज द रेफरेंस ईयर अगेंस्ट विच इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इज मेजर्ड. जनरली जो है इंडिया का जो बेस ईयर था दैट इज 2011-2012 पहले तक हुआ करता था. बट अब सीपीआई कैलकुलेशन या बहुत जो अलग अलग इंडेक्सेस है सबका जो बेस ईयर है उसको चेंज कर दिया गया है. अर्लियर दिस बेस ईयर वॉज 2011-2012. ठीक है. सो ये एक रेफरेंस ईयर होता है जिसके अगेंस्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है. नेक्स्ट आप ये टर्म भी देखोगे और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि व्हाट एक्चुअली इज अ हिंदू ग्रोथ रेट. अब जैसे हिंदू ग्रोथ रेट है तो आप इसको सोचोगे कि ये पॉपुलेशन से रिलेटेड होगा. ठीक है. But it is not true. Now, this Hindu growth rate, it was used by Professor Raj Krishna for India's low pre-1991 growth rate. ठीक है. 1991 में we know that the LPG reforms आए थे, but इसके पहले India was a type of a closed economy. बहुत ज़्यादा इंडिया ट्रेड नहीं करता था with the outer economies or the other world, and that is why growth rate ज़्यादा नहीं होता था. And this Hindu growth rate का रेफरेंस ही वो है that was given by Professor Raja Krishna for India's low pre-1991 growth rates. ठीक है. Now let us now come to the most important thing in this chapter, that is the calculation of the national income. Now, national income or NI is C plus I plus G plus X minus N. So what does C stands for? NI तो आप समझ गए होंगे. NI stands for national income. C stands for the total consumption expenditure, कि टोटल कंजम्पशन कितना यहाँ पे किया है पब्लिक ने. नेक्स्ट इज टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कितना गवर्नमेंट ने या पब्लिक ने इन्वेस्ट किया है. देन इज टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में मेनली कंज्यूमर साइड का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को देखा जाता है. जी मीन्स टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, एंड एक्स माइनस एम इज नेट ऑफ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. ठीक है. एक्स मतलब एक्सपोर्ट, आई मतलब इंपोर्ट. अब दोनों का जो नेट इफेक्ट होता है दैट इज बीइंग एडेड टू दिस नेशनल इनकम का फॉर्मूला. ओके. सो आई होप समझ में आ गया होगा व्हाट इज नेशनल इनकम. इट इज एन सम ऑफ सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है बाय द जनरल पब्लिक. जी मीन्स द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्स माइनस एम इज नेट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. मतलब एक्सपोर्ट में से हम इंपोर्ट को माइनस करेंगे. द नेट अमाउंट दैट इज देयर, इट इज द नेशनल इनकम. ठीक है. नाउ आफ्टर दिस आपको ये समझना है कि देयर आर डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट दिस नेशनल इनकम. देयर आर डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट दिस नेशनल इनकम. ठीक है. नाउ सबसे पहला मेजर तो क्या होता है, जीडीपी को मेजर करने का, विच इज नोन एज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नाउ what does this GDP means? GDP means the total value of final goods and services that is produced within a country's border annually. इसका फॉर्मूला क्या है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन. यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी कि इस चीज को हमने यहाँ पे जस्ट अबव पढ़ा था, विच इज नोन एज द नेशनल इनकम. ठीक है. सो हियर वी कैन से दैट कि जो जीडीपी होती है दैट इज ओनली द नेशनल इनकम. इट इज एब्सोल्युटली ट्रू. अब आपको समझ में आ गया होगा लोग जीडीपी के बारे में इतना बात क्यों करते हैं. अब आप इस चीज को समझ गए होंगे. सो जीडीपी इज द कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर एंड नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. ठीक है. दिस इज द जीडीपी मेजर. नेक्स्ट देखते हैं what is this another measure, that is GDP at market price. अब हमने यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, जीडीपी का तो हमने देख लिया, दिस इज दी C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम.
मैंने आपको नेट यहाँ पे मार्केट प्राइस की भी डेफिनेशन बताई थी, जहां पे द प्राइस इट इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड द सब्सिडीज, एंड यही आपको आगे काम में आने वाला है टू डिसाइड एंड टू मेजर कि कैसे हम मेजर कर सकते हैं. नाउ नाउ व्हाट डज दिस जीडीपी एट मार्केट प्राइस मींस? Now, GDP is valued at market price, which includes indirect taxes less subsidies. ठीक है, तो GDP at market price कैसे डिराइव होता है? That is the GDP at factor cost plus indirect tax minus subsidy. We come to the GDP at market price. अब यहीं पे हम देख लेते हैं GDP at factor cost क्या होता है. GDP at factor cost is the value of all goods and services produced minus indirect taxes plus subsidies. Now basic difference जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, GDP at market price में क्या होता है? It includes, it adds the indirect taxes and subtracted the subsidy. But factor cost में what happens is GDP at market price में we subtract the indirect tax and we add the subsidies. Okay, आई होप कि ये दोनों चीजें अब आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ पे. नेक्स्ट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्रॉस वैल्यू एडेड? नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द इंटरमीडिएट कंजम्पशन कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री टू द जीडीपी. यहाँ हमें जीवीए से पता चलता है. लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. अभी हमने देखा था कि अभी हमने वैसे पढ़ा नहीं है, बट लेट मी टेल यू देयर आर वेरियस सेक्टर्स इन द इकोनॉमी. बेसिक्स वाले क्लास में मैंने ये कवर करवा दिया है. इफ यू haven't watched that video, you can go and watch that video first. Now if I talk about the sectors, there is the primary sector, there is the secondary sector, and then there is the tertiary sector जो बेसिकली सर्विस सेक्टर भी होता है. अब जीडीपी में तो ये सारे सेक्टर्स को हम देखते हैं, इस सारे सेक्टर्स का हमें पता चलता है ओवरऑल इंडिया में कितना वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग प्रोड्यूस. बट व्हाट इफ वी वांटेड टू नो अबाउट द सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस? हमें ये पता करना है कि हाउ मच हैज द प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द जीडीपी, हाउ मच हैज द सेकेंडरी सेक्टर हैज कंट्रीब्यूटेड, एंड हाउ मच हैज द टर्शियरी सेक्टर कंट्रीब्यूटेड. So for ascertainment of these things, that for ascertainment of this sector-wise performance of the economy, this gross value added is used. Now this is the value of output minus intermediate consumption. जब हम intermediate consumption जो हो रहा है उसको हम माइनस करते हैं, then we get to know the contribution of each sector or industry to the GDP. इट इज एक्चुअली जीडीपी में जब हम सब्सिडीज को इंक्लूड करते हैं प्लस टैक्सेस ऑन द प्रोडक्ट्स को हम माइनस करते हैं तो एक सेक्टर की हमें परफॉर्मेंस यहाँ पे मिलती है. नेक्स्ट इज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज द जीएनपी. नाउ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है? द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री इंक्लूडिंग द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अब मेनी पीपल आर देयर हु आर द रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, वो रेसिडेंट्स हैं हमारे इंडिया के, बट दे अर्न अब्रॉड. ठीक है, पैसा वो बाहर जाके कमाते हैं. सो व्हाट हैपेंस इन दिस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज, हम जीडीपी में जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, जो हमारे कंट्री के जो लोग बाहर रह रहे हैं वो जो पैसा अर्न कर रहे हैं, जब हम उसको ऐड करते हैं देन वी कम टू दिस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ठीक है, वहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट जो हमारी थिंग है, दिस इज द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं देन वी कम टू द नेट. ठीक है, अब व्हाट इज द एनडीपी? दिस इज द जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन. इट इज द नेट वैल्यू आफ्टर अकाउंटिंग फॉर कैपिटल वियर एंड टियर. सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट इज सेम थिंग है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है. अब हमने देखा था जीएनपी होता है, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. इसमें जब हम डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करते हैं देन वी हैव द नेट नेशनल प्रोडक्ट, एंड इट इज द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री. नेक्स्ट है व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम. मैंने आपको पहले बताया था पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला आई ऑलरेडी टोल्ड यू. व्हेन द नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री वी गेट द पर कैपिटा इनकम. This is the average income per person
national income divided by total population. This is the formula of per capita income. नेक्स्ट है हमारा जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, दिस इज द ग्रीन जीडीपी. नाउ व्हेन द जीडीपी इज एडजस्टेड फॉर द इन्वायरमेंटल कॉस्ट लाइक रिसोर्स डिप्लीशन एंड पोल्यूशन, जब हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को, व्हेन वी कंसिडर दिस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इट मीन्स दैट मानो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉरेस्ट को क्लियर किया, सो इट इज कॉस्टिंग द फॉरेस्ट, वुड्स को कट किया गया. ये सारे जो लॉसेस हैं, इसके साथ साथ पोल्यूशन की वजह से काम नहीं हो पा रहा, पोल्यूशन की वजह से रिसोर्स का डिप्लीशन हो रहा है, रिसोर्स खराब हो रहे हैं, पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है पोल्यूशन से. ठीक है, ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स व्हेन दिस इन्वायरमेंटल कॉस्ट like resource depletion and the pollution, these facts are included, then we get the green GDP. Now this GDP minus environmental degradation cost, then we come to this point of green GDP. ठीक है. Now हमने अभी देखा कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, वेरियस फॉर्मूलाज वी हैव सीन, जैसे एनडीपी है, जीडीपी है, ऑल ऑफ दिस वी हैव सीन. नाउ वी विल सी the methods, the various methods to measure the national income. So let us start with this topic. Now we will see the different methods to measure the national income. Now the first method, there are basically three methods. एक तो है product method, the second one is income method, and the third one is expenditure method. Now let us see the product method first. Now in this method, the aggregate value of all final goods and services are produced in a year is taken. तो जैसे GDP में when we take the final value of all the goods and services that are produced within the territory of a country, that is taken, and इससे हम subtract करते हैं the intermediate consumption. So what basically is the intermediate consumption? Now पहले इस वीडियो के पहले वाले पार्ट में वी हैव ऑलरेडी सीन द डिफरेंस बिटवीन द इंटरमीडिएट एंड द फाइनल गुड्स. ठीक है, फाइनल गुड्स क्या होता है? दीज आर द गुड्स विच आर डायरेक्टली फॉर द यूज बाय द कंज्यूमर्स. इसमें जो फाइनल गुड्स होते हैं, वी कैन नॉट मेक एनी एडिशंस, फर्दर एडिशंस टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट. दिस इज अ फाइनल गुड एंड इट इज यूज्ड फॉर द कंजम्पशन पर्पसेस. Okay, now when we talk about this intermediate goods or the intermediate consumption, now this is a consumption in which all of the product that is further used to make any product, ये सारे को हम subtract कर देते हैं. For example, flour is used by the bakeries. The flour is used by the bakery to make bread. ठीक है, सो फर्दर ये फ्लोर हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया. क्यों? बिकॉज फाइनल प्रोडक्ट इज ब्रेड. फ्लोर का यूज किया जा रहा है बाय द बेकरी टू मेक द ब्रेड. दैट इज व्हाई दीज टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट आर द intermediate consumption, and this intermediate consumption is subtracted from the aggregate value of all final goods and services. ठीक है. Now this is the product method. Next जो हमारा मेथड है, this is the income method. Now this includes the sum net income earned from all factors of the production. मैंने आपको कल बताया था 4 factors of production होते हैं, which is land. land से हमें क्या मिलता है? रेंट मिलता है. लेबर, लेबर को क्या मिलता है? लेबर को वेजेस मिलते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या? एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स ओनर ऑफ द बिजनेस. अब ओनर जो है बिजनेस का, वो क्यों ही वुड ओपन अ बिजनेस? ऑब्वियसली टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है, सो लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपिटल इज द लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. अब कैपिटल पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है. ठीक है, सो यही सारा कुछ मेंशन है यहाँ पे. इनकम मेथड में सम ऑफ द नेट इनकम्स दैट इज अर्न फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑल ऑफ दिस इज टेकन एंड दिस इज नोन एज द इनकम मेथड. I hope you are getting what I am trying to say. ठीक है. Now the next thing is the expenditure method. अब as the name suggests, जितने भी expenditures होते हैं यहाँ पे, all of this is taken
Now this is the total consumption as well as the savings. ठीक है, it is also called the consumption method. It focuses on spending and saving patterns. Now income is constituted of expenditure plus saving. ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी कंजम्पशन हो रहा है, जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है और हम सेव कर रहे हैं, दिस इज टेकन टू get this get this amount of the national income. Now we have seen all the things, all the basic points regarding the national income. Now we will see in India which organizations are there that is involved in the national income estimation. Now the first organization is the Central Statistical Organization, which was formerly under the Ministry of Statistics, and it coordinated the statistical activities. Next is the National Sample Survey Office, which is NSSO. This NSSO conducts large-scale sample surveys for data relevant to the income and expenditure. And the final body which is there now, पहले दो अलग अलग bodies होती थी, एक तो Central Statistical Organization, the second one was NSSO. But what happened in 2019 was this CSO was merged with NSSO to form the National Statistical Office. It was formed by merging the CSO and the NSSO, which is currently responsible for official estimations of the national income. ठीक है, now इसके पहले there was a National Statistical Commission which was established in 2005 to oversee and improve the statistical collection and dissemination. So this was also a body, because it is a government body, it is a commission that is formed by the government. So इसके बारे में आप basically थोड़ा सा information रख सकते हैं जो आप अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हो. Next is, let us see some of the interesting facts and data points which you can also use in your mains examination. ठीक है, now the India's National Income Committee, it was chaired by PC Mahalanobis, who was a pioneer statistician. ठीक है, he was a pioneer statistician, and जो हमारा second 5-year plan था, it was based on the Mahalanobis plan. ठीक है, 5 years plan भी हम डील करेंगे, इसी सीरीज में हम डील करेंगे इन द अपकमिंग चैप्टर. सो ही वाज द हेड ऑफ द इंडियन नेशनल इनकम कमिटीज. ओके, नाउ 1951 में व्हाट हैपेंड वाज, अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम की, सो इट वाज 8650 करोड़ and it reflected an economy beginning to systematize the data collection. 1947 में our country got independence, and 51 में first income का measurement किया गया था, which came to be around 8650 crores. Next is, let us see this per capita वाला fact, and this you can quote in your mains examination. डेवलपमेंटल वाले पार्ट में इस फैक्ट को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. जो डेटा मैंने दिया है, ये डेटा बिल्कुल लेटेस्ट है, which is provided by the government sources. So this point you can mention in your mains examination. Okay. Now the per capita income in 1951 was just 246.50 rupees. ठीक है. Now by 2021 अगर मैं बात करूं, नॉमिनल जीडीपी इंडिया की ये 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स तक ये पहुंच चुकी थी. एंड पर कैपिटा इनकम की मैं बात करूं, सो पर कैपिटा इनकम इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इंडिया की पर कैपिटा इनकम इज 1,88,000 के अराउंड. सो आप देखो लोग कितना सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है. ठीक है, कितना सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है यहाँ पे. इन अराउंड 75 ईयर्स में 246 रुपीज से इंक्रीज करके इंडिया की पर कैपिटा इनकम हैज बीन अराउंड 1,88,000. ओके, now this data is according to the second advance estimates that was released in the February 2025 by the Ministry of Statistics and Program Implementation. Now India, it follows a financial year from the April 1st to 31st March. मैंने financial year के बारे में आपको पहले ही बता दिया है. So this is it. Now let us see the summary of this chapter, what all we have learned till now. सबसे पहला तो नेशनल इनकम, इट मेजर्स द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ऑफ अ कंट्री इंक्लूडिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट द नेट फॉरेन इनकम. डिफरेंट वेज टू मेजर है. ठीक है, नेशनल इनकम इज मेजर्ड थ्रू डिफरेंट वेज. जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, पर कैपिटा इनकम है. ऑल ऑफ दिस वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल विथ देयर फॉर्मूलाज. ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अब नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सारा कुछ ही आपका
बहुत ही एप्लीकेटेड वे में यू कैन रिवाइज ऑल दिस. Now there are multiple methods such as product method, income method, expenditure method to help ensure the accuracy. Next is India's official estimates. Firstly, सबसे पहले India's official जो है early estimates थे, it was done by Dadabhai Naoroji to modern comprehensive methodologies which is guided by the national committees. ग्रीन जीडीपी वी हैव सीन. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की एडजस्टमेंट भी हम करते हैं ग्रीन जीडीपी में. सो दिस इज व्हाट ग्रीन जीडीपी इज अबाउट. नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल एजेंसीज हैं सच एज एनएसओ विच वाज फॉर्म्ड इन 2019. अभी रिसेंटली ही एनएसओ फॉर्म हुई है बाय मर्जिंग द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनएसएसओ. ठीक है. सो विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर. वी आर डन विद द थियोरेटिकल पार्ट. थ्योरी हमने अभी कंप्लीट कर लिया है. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दी एमसीक्यू क्वेश्चंस. एमसीक्यूज क्वेश्चन करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा. नाउ लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन. द ग्रोथ रेट ऑफ per capita income at current price is higher than that of the per capita income at constant price because the latter takes into the account the rate of. अब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ. 4 पॉइंट्स होते हैं. एक तो है रियल, एक होता है नॉमिनल. जस्ट लाइक दैट एक होता है हमारा करंट, एक होता है हमारा कांस्टेंट. ठीक है. अब व्हाट हैपेंस इज इन नॉमिनल इज कि नॉमिनल में वी टेक इनटू अकाउंट द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. बट जब हम कोई भी डेटा को रियल टर्म्स में मेजर करते हैं तो इन्फ्लेशन को उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं और द इन्फ्लेशन इज नॉट कैलकुलेटेड फॉर. जस्ट लाइक दैट यहाँ पे करंट और कांस्टेंट का भी सीन होता है. करंट प्राइसेस में व्हाट हैपेंस इज इन्फ्लेशन इज इंक्लूडेड एंड कांस्टेंट प्राइसेस की मैं बात करूं तो इन्फ्लेशन इज नॉट अकाउंटेड. इन्फ्लेशन यहाँ पे अकाउंट नहीं की जाती है इन द कांस्टेंट प्राइसेस. एंड दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट. क्वेश्चन हमारा है द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइसेस इज हाइयर देन दैट ऑफ अ पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस. ये बोल रहा है करंट प्राइसेस पे जो करंट प्राइसेस पे जो पर कैपिटा रेट है इट इज हाइयर देन दैट ऑफ द कांस्टेंट प्राइसेस. व्हाई? इट इज बिकॉज दिस करंट प्राइसेस पे इन्फ्लेशन को इंक्लूड किया जाता है. अब क्योंकि इन्फ्लेशन को इंक्लूड किया जाता है दैट इज वाई तो इसका अमाउंट हाइयर है ना. कांस्टेंट का द अमाउंट इज लेस बिकॉज इन्फ्लेशन इज नॉट अकाउंटेड फॉर. सो इट इज ड्यू टू द increases in the price level and this is what is the standard definition of inflation. Inflation की definition क्या होती है? Inflation की definition है it is the general increase in the price levels of the goods and the services. Just a second. Just a second, ये थोड़ा सा technical glitch यहाँ पे हो गया है. Yes. Now let us see the description. Now the growth rate of per capita income at current price is higher than that of the per capita income at constant price because the latter, it means the current prices, it takes into account the rate of the increase in the price level which is also known as the inflation in the economy. ठीक है. The constant price is taken with reference to the base year. याद करो base year हमने क्या बताया था. Base year was the reference year which is used to calculate a standard rate. ठीक है. एक ईयर को हम कंसिडर करते हैं रेफरेंस ईयर के हिसाब से which is used to measure the further things. It is inflation adjusted price. Constant price is a inflation adjusted price and per capita income at current prices is equal to per capita income at constant price in by current price into 100. This is the formula for calculating it. But basically the thing is constant prices पे when we derive the formula it is already inflation adjusted and this is a key concept in the economy. You will see conceptually आप बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से. Okay. Now the next thing is
द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज इट्स। अब बहुत लॉजिकल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि मैंने आपको इतनी चीज़ें फैक्चुअली और थ्योरेटिकल बताया है कि यू शुड नो। ये क्वेश्चन आपको सही से सॉल्व करना चाहिए। नाउ what will be, let us see the options. जीडीपी, अब आपने तो इतना जीडीपी ही सुना है, तो क्या ये मेजर हो सकता है? या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या होता है? व्हेन जीडीपी इज एडजस्टेड फॉर डेप्रिसिएशन। नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसमें कि नेशनल इनकम इज इंक्लूडेड, एंड देन देयर इज पर कैपिटा प्रोडक्ट। किसी भी कंट्री की एक्चुअल ग्रोथ पता हमें कैसे चल सकती है? उसके पीपल के वेलफेयर से। लोगों का कितना वेलफेयर होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें ये बताता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितनी है कंट्रीज में, कितनी हो रही हैं, रेट क्या है ग्रोथ का। दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड बाय द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन हमें लोगों का एक्चुअल भला हो रहा है या नहीं हो रहा है, व्हाट इज द मेन आइडिया बिहाइंड दैट? द आइडिया इज द पर कैपिटा इनकम, कि लोग कितना अर्न कर रहे हैं। सो एप्रोप्रिएट मेजर क्या होना चाहिए? एप्रोप्रिएट मेजर होना चाहिए पर कैपिटा प्रोडक्ट, क्योंकि द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज देयर विद द पीपल ऑफ द कंट्री विल एक्चुअली शो कि कितना डेवलपमेंट हुआ है। दैट विल शो कि कंट्री की एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और ये पता होना चाहिए आपको, एंड आप इस चीज को दिमाग में रख लेना। ये PYQ भी है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं आपके। The most appropriate measure of a country's economic growth is its per capita product. It is the gross domestic per capita product or GDP per capita. It divides the country gross domestic product by total population. हमने देखा भी था per capita income के फॉर्मूले में, that is the national income divided by the population of the country. It reflects the actual condition of the people of that country. So this is going to be the correct answer. Next question is, the Hindu rate of growth refers to the growth rate of. Now, in the terminology के part में we have already seen this. This was in the terms of national income. LPG reforms जब हुए थे in the year 1991, इसके पहले का जो भी ग्रोथ रेट था ना इकोनॉमी का, उसके लिए प्रोफेसर टर्म दिस रेट एज अ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. ठीक है, दिस वी हैव सीन. Hindu rate of growth is a term describing low Indian economic growth rate from 1950s to 1980s, which averaged around 4%. 1991 के पहले की बात है ये. It takes into account the national income of a country. It was coined by Professor Raj Krishna, an Indian economist in 1978. Okay, so this is important. Okay, समझ में आ गया होगा, I hope आपको. Now, the next question is, which of the following statement is correct? ठीक है, which of the following statement is correct? The first is NNP is equal to net national product is equal to gross national product minus depreciation. So ये basically formula मैंने आपको बता दिया था. Whenever gross से we subtract net, तो gross से when we subtract the depreciation, we get the नेट अमाउंट. सो इट इज एब्सोल्युटली ट्रू. हमें बताना है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. तो ए तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है. तो क्या आंसर ए होना चाहिए? लेट अस सी. दिस इज नेट नेशनल प्रोडक्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन. अभी देखो, अगर यहाँ पे डेप्रिसिएशन सब्सट्रैक्ट नहीं होता ना, तो ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता. बट बिकॉज जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को हमने माइनस किया एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हमने ऐड किया, सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर होगा हमारा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. ओके, दोनों के दोनों हमारे बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है. इफ यू टॉक अबाउट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इट इज द जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ये तो हमने देखा ही. दिस इज द जीएनपी. एंड जब हम ग्रॉस से डेप्रिसिएशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं, इट इज द एनएनपी, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट. देखो यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से फिर हमने डेप्रिसिएशन को सब्सट्रैक्ट किया एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसको हमने प्लस किया. सो बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट. ये मैंने आपको थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन में भी बताया था. नेक्स्ट, बेस ईयर इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग मीन्स.
So what actually is a base year? The year whose income is being used to calculate the nominal GDP, the year whose prices are being used to calculate the nominal GDP, the year whose prices are being to calculate the real GDP, the year whose income is used to calculate the real GDP. अब what is the correct answer? ठीक है. So what happens in calculating this base year is कि हमें पता है बेस ईयर इज यूज्ड एज अ रेफरेंस ईयर. ठीक है. अब रेफरेंस ईयर हमने लिया है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि प्रायर टू अभी रिसेंटली 2022-23 को बेस ईयर बना दिया गया है टू कैलकुलेट द जीडीपी. ठीक है. ये हमारा न्यू बेस ईयर है. अब बेस ईयर का मतलब होता है रेफरेंस ईयर इज टू बी टेकन. क्योंकि रेफरेंस ईयर इज समवॉट ओल्डर, सो क्या उस ईयर में इन्फ्लेशन इंक्लूड होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी. तो जब इन्फ्लेशन नहीं होती है तो कुछ जो भी अमाउंट हमारा आता है दैट इज द रियल. तो हम अगर जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं एंड हमने इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया है, सो ऑब्वियसली दैट वुड अमाउंट टू द रियल जीडीपी. तो यहाँ पे आपको नॉमिनल अगर दिख रहा है तो ये तो स्ट्रेट अवे ही आप कैंसिल कर दोगे क्योंकि तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है. ठीक है. तो बेस ईयर तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होगा. सो हमारा नॉमिनल तो यहीं से हमने इसको हटा दिया. नेक्स्ट इज कि द ईयर हुज प्राइसेस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी. ऑब्वियसली बिकॉज हम जीडीपी निकाल रहे हैं तो प्राइसेस को ही कंसिडर करेंगे, इनकम को तो कंसिडर करेंगे नहीं. सो दैट इज वाई सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. बेस ईयर की डेफिनेशन मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में भी बता दिया था. सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपने सक्सेसफुली अच्छे से करेक्ट किया होगा. नेक्स्ट देखते हैं. The next question is, yes, theoretically, if economic growth is conceptualized, which one of the following is not usually taken into consideration? ठीक है. If economic growth is conceptualized, which of the following is not taken into consideration? तो इकोनॉमिक ग्रोथ हम मेजर कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ जीडीपी, बिल्कुल कर सकते हैं. ग्रोथ इन द फाइनेंशियल एड फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक. अभी आप मुझे बताओ, चलो ठीक है, लेट अस सी द अदर ऑप्शंस एज वेल. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये भी हमने देखा, दिस कैन आल्सो बी यूज्ड. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी तो एक मेजर है ना टू कैलकुलेट द जीडीपी. ये भी बिल्कुल सही है. पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये भी सही है. आप मुझे बताओ नैरोएस्ट डेफिनेशन क्या है? नैरोएस्ट डेफिनेशन क्या है? नैरोएस्ट तो वर्ल्ड बैंक का ही है ना, फाइनेंशियल एड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक. अब वर्ल्ड बैंक इज अ इंस्टीट्यूशन. तो क्या किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा दिए गए फाइनेंशियल एड पे डिपेंड करेगी क्या? एब्सोल्युटली नॉट. कभी भी नहीं कर सकती है, कभी भी नहीं करेगी. सो यहाँ पे हम ग्रोथ इन द फाइनेंशियल एड फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन एनी वेज. सो हमारा बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट is gross domestic product plus depreciation. यहीं पे ये गलत हो गया. We have already seen net domestic product is GDP minus depreciation. तो स्टेटमेंट वन हमारा बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट है. अब यहाँ पे हम ऑप्शंस देख सकते हैं. स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड ट्रू. 1 तो हमें पता है इज नॉट ट्रू, एलिमिनेट. ओनली स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, एलिमिनेट. ओनली स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर ट्रू, ये हो सकता है, ये अभी हम देखते हैं. सो वी आर ओनली लेफ्ट विथ टू ऑप्शन. या तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा या तो डी होगा, बिकॉज 1 तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया कि वो तो आंसर नहीं हो सकता. नेक्स्ट इज पर कैपिटा इनकम इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द नेशन. सो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. पर कैपिटा इनकम इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय द टोटल पॉपुलेशन. नेट डोमेस्टिक नहीं होता, ग्रॉस डोमेस्टिक होता है. सेकेंड स्टेटमेंट भी एलिमिनेट. हमारा करेक्ट आंसर है इनमें से तीनों statement. All of the statement given here are incorrect. Let us see the third option as well. Net domestic product is a better metric than gross domestic product for comparing the economies of the world. So ये भी statement हमारा correct incorrect है. ओके. वाई? क्योंकि हम कभी भी मेजर करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को तो जीडीपी के टर्म्स में मेजर करते हैं
हम ऐसे बोलते हैं कि अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ या अमेरिका की जीडीपी इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 7%। इन कंपैरिजन टू इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो अराउंड 8% है। तो जीडीपी मेजर होता है ना, नेट डोमेस्टिक मेजर नहीं होता। ठीक है, ये सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। यू कैन सी द पीडीएफ आप देख सकते हैं। द लिंक टू बाय द पीडीएफ विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो वहाँ से आप पीडीएफ बाई कर सकते हो एंड अपने रिवीजन को और एफिशिएंट कर सकते हो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू कैलकुलेट द जीडीपी। प्रोडक्ट मेथड तो हमने देखा है, इनकम मेथड भी देखा है, एक्सपेंडिचर मेथड भी देखा है, बट क्या अभी तक हमने डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड देखा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बी इज डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड इज नॉट एनी मेथड टू कैलकुलेट द जीडीपी। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग equals the personal disposable income. Personal income minus direct taxes paid by household and miscellaneous fees and fines. Private income minus savings of corporate sector and corporation tax. Disposable income की बात हो रही है, प्राइवेट इनकम नहीं आ गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज प्राइवेट इनकम माइनस टैक्सेस, नॉट एट ऑल। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल लॉजिकल भी नहीं है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है? इट इज दैट इनकम विच इज देयर फॉर द कंजम्पशन पर्पसेस। ठीक है, तो ये जो भी पर्सनल इनकम है जो आपने कमाया, मान लो आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए, उसमें से मान लो डायरेक्ट टैक्सेस जस्ट लाइक इनकम टैक्स मान लो 10,000 रिड्यूस कर दिया, फिर डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय हाउस होल्ड एंड मिसलेनियस फीस, मान लो अलग अलग फीस एंड फाइन्स के तौर पे आपने 10,000 और पे किया। सो आपके पास आपके बैंक अकाउंट में इनकम जो मेन आपका अमाउंट बचेगा वही तो आपके डिस्पोजेबल के लिए होगा ना। only that amount you can use only that amount you can use for the consumption purposes, उसको आप डायरेक्टली विड्रॉ कर सकते हो एटीएम से। यही इस क्वेश्चन का मतलब है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की यहाँ पे डेफिनेशन आपसे पूछी गई है। तो डायरेक्ट टैक्सेस, गवर्नमेंट को टैक्स वैक्स देने के बाद, सारा कुछ देने के बाद जो भी अमाउंट हमारे पास बचा, दैट इज ओनली दी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन। It refers to the amount of income that a household have available for spending or saving after deducting direct taxes and other miscellaneous deductions. ठीक है, now next is the situation where the equilibrium level of real GDP falls short of potential GDP. ठीक है, अब ये थोड़ा सा एक टेक्निकल क्वेश्चन है। टेक्निकल इस तरीके से है, रियल जीडीपी मतलब जो एक्चुअल जीडीपी हमने मेजर किया है। पोटेंशियल जीडीपी इट मीन्स कि इकोनॉमी में कितना पोटेंशियल है, कि कितने तक, टिल व्हाट एक्सटेंट आवर जीडीपी कैन गो। फॉर एग्जांपल मान लिया कि पोटेंशियल जीडीपी इंडिया की है 10%, 10% ग्रोथ रेट है इंडिया का पोटेंशियल जीडीपी। बट जब रियल जीडीपी हुई और द एक्चुअल फिगर्स आए तो कंट्री की ग्रोथ सिर्फ 8% थी। तो ये सरप्लस हुआ या डेफिशिएट हुआ? ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि यहाँ पे 10% की पोटेंशियल है, 8% पे कंट्री ऑपरेट कर रही है, तो ये तो डेफिसिट ही हुआ। इन्फ्लेशन तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि सरप्लस तो है नहीं, तो इन्फ्लेशन कहाँ से होगा? इन्फ्लेशन मतलब ज़्यादा। 10% हमारा टारगेट है, 8% पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा तो है नहीं। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का बढ़ जाना। तो दिस इज नॉट इंक्रीजिंग ना, इट इज़ ऑब्वियसली डिक्रीजिंग। तो डिक्रीज की ये क्या है? रिसेशन मतलब क्या होता है? मंदी आना। ठीक है, रिसेशन मतलब होता है कि मार्केट में मंदी है। इट मीन्स क्या? डिक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे डिक्रीज ही तो हो रहा है। पोटेंशियल हमारा 10% है, रियल हमारा 8% है। सो दिस इज द रिसेशनरी गैप। समझ आ गया? नाउ द सिचुएशन वेयर द इक्विलिब्रियम level of real GDP falls short of the potential GDP is referred to as the recessionary gaps. A recessionary gaps or contractionary gap occurs when a country real GDP is lower than the GDP at full employment. ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया। So with this we are done with this chapter. Next chapter है हमारा प्लानिंग इन द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम 5 years प्लान वगैरह के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। एंड हाँ, टू ग्रो दिस चैनल आई नीड अ बिट ऑफ योर सपोर्ट।
सो द चैनल मेंबरशिप इज लाइव ऑन द चैनल, आप ज्वाइन कर सकते हो। द मेंबरशिप चार्जेस आर जस्ट 29 रुपीज़ पर मंथ। हो सकता है आपको 29 रुपीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़े, बट दिस चैनल आपके एक कंट्रीब्यूशन से आई कैन दिस चैनल कैन फ्लरिश। ओके, सो यू कैन ज्वाइन द मेंबरशिप। मेंबरशिप के एक्सक्लूसिव कंटेंट विल बी स्टार्टेड अपलोडिंग रीस मतलब सून। मैं नेक्स्ट 10 to 15 डेज में एक्सक्लूसिव मेंबर्स ओनली वीडियोस चैनल पे आनी शुरू हो जाएंगी, विच कंटेंट विल बी एक्सक्लूसिव ऑन दिस चैनल। ठीक है, जनरली अवेलेबल नहीं होगा, मेंबर्स के लिए स्पेशल कंटेंट होगा। सो यू कैन सपोर्ट इन दैट वे ऑल्सो। सो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू मेंशन योर वैल्यूएबल सजेशंस ऑन द in the comment section. So thank you for watching and keep studying.